गुड मॉर्निंग बीए सेमेस्टर 2 सेमेस्टर 4। आज मैं आपके साथ एक नया पेपर अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर शुरू करने वाली हूँ। ये आपके स्किल इन्हांसमेंट कोर्स का सेकंड पेपर है और आज हम इसके यूनिट 3 में जाएंगे। यूनिट 3 बात करता है परफॉर्मेंसेस, थिएटर, folk tales, song, nautanki, different kinds of theaters. So we are actually going to talk about different kind of things that has come up in this paper. So the first thing that we are going to take up is how did this originate? What is theater? You know, there are many definitions of theater. And there are traditional theaters, there are modern theaters, there were medieval theaters, there are classical theaters, there are folk theaters. So there are different kinds of theaters. And if you ask me that can we have a common definition for all, then I'll say no. There cannot be any common definition for theater, but you'll have to understand the strands of definition that we have. Of course, largely we can fit whatever the definition of theater is into two groups. The first is called the traditional definition of theater and the second is modern definition of theater. So the traditional definition of theater is that, you know, this kind of definition has its origin in the very good work which I would be detailing you in the subsequent slides, that is Natya Shastra. Here it is mentioned that theater is an art of God and it stems from the God and teaches us duty. So theater has to have a divine origin, and there are many stories regarding it, according to which Brahma said that one has to devise this form of art in order to make people understand the sentiments and the feelings of others properly. Whereas the modern definition of theater is completely different. It says theater is a mode of expression of human sentiments in a way that is appealing and attract audiences. So there, in the modern expression, you have to have a mass appeal. You have to attract the audiences towards the performances or the performing art. So another word for theater is performing art, and in the modern definitions there are many forms of theater. There are plays, one act plays, skit, dramas, dance dramas, and various forms of theater that would actually deviate us from what we are going to talk. So we'll focus on what our lecture is on today. तो जब आप आती है कि भारत में थिएटर कैसे शुरू हुआ है या नाट्य कला कैसे शुरू हुई, तो नाट्य कला की शुरुआत के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है नाट्य शास्त्र, जिसके बारे में मैं कुछ स्लाइड्स में इसके बाद मैं चर्चा करूंगी। तो वहां मैं डिटेल पूरे विस्तार से इस पुस्तक की चर्चा करूंगी, लेकिन याद रखें इस पुस्तक में इस बात का जिक्र किया गया है कि नाट्य कला एक महान कला है और ब्रह्मा जी से एक्चुअली एक कहानी कही गई है। उस कहानी में ये कहा गया है कि जो प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म 4 वर्णों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो कई सारे काम करके या उनके लिए, चूंकि वो कहानियां सुन सकते थे, रामायण की पढ़ सकते थे, महाभारत की, और अनेक प्रकार के ग्रंथ सुन सकते थे, श्लोक सुन सकते थे, जबकि ये सब काम शूद्रों के लिए वर्जित था। तो ब्रह्मा जी के पास शूद्र गए और उनको कहा कि उनके लिए भी इस तरह की ज्ञानप्रद बातों को जानने का कोई अवसर होना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि आप जाएं और इस तरह की नाट्य कला की शुरुआत करें। इसके लिए आप देखेंगे कि देवी सरस्वती की आराधना की गई। ब्रह्मा जी के आदेश से यह संभव हो पाया। ऐसी किंवदंतियां हैं, ऐसी प्राचीन कहानियां हैं। अब आप मुझसे ये ना पूछिएगा कि क्या ये सच है। ये उतना ही सच है जितना आप ईश्वरीय कहानियों पर यकीन करते हैं। और अगर आपको धार्मिक ग्रंथों में यकीन नहीं है, आप नास्तिक हैं, तो इस पर यकीन ना करें। लेकिन हमारे पास जो उपलब्ध साक्ष्य हैं उनके मुताबिक
इस प्रकार की घटनाएं हुई थी या इस प्रकार की बातों का विवरण नाट्यशास्त्र में किया गया है। अब नाटक की कला या ये जो नाट्य कला है, इसके कई परिभाषाएं हो सकती हैं, कई व्याख्याएं हो सकती हैं। हम इनमें से दो प्रमुख व्याख्याओं पर आज आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। पहला है पारंपरिक व्याख्या, जो ये कहती है कि ईश्वर ने ये कहा कि आप इसको सीखें, और आधुनिक व्याख्या जिसमें ये कहा गया कि ये जो है एक ऐसी कला है जिसके द्वारा आप दर्शकों को बांध कर रखते हैं। तो ये दोनों प्रकार की परिभाषाएं हैं जो आपको दिखाई पड़ती हैं। अब आ जाते हैं कई थ्योरीज के बारे में। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी एक बात पर सहमत नहीं हैं। कुछ विद्वान इस बात को मानते हैं कि 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में से ही नाट्य कला का विकास हो चुका है। अब इस बात के चूंकि हमारे पास बहुत साक्ष्य नहीं है, इसलिए हम इस बात को एक विचारधारा के रूप में रख सकते हैं, पर एक तथ्य के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते, क्योंकि हमारे पास इसके सबूत नहीं है। लेकिन 5वीं शताब्दी ईस्वी में पनीनी ने अपनी किताब में ये इस बात की चर्चा की है कि 5वीं शताब्दी ईस्वी में नाट्य सूत्र नामक एक नाटकों पर एक किताब लिखी गई थी। फिर है आप 3री से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसमें पाली सूत्र। अब ये देखिए, ये जैन धर्म और बौद्ध धर्म का काल है, और आप जानते हैं कि उस समय जो बौद्ध धर्म की किताबें थीं वो पाली में लिखी जा रही थी, जो उस समय आम लोगों की भाषा है। तो उसमें एक बार इस बात का जिक्र आया है कि कलाकारों का एक दल हुआ करता था, और वो दल जगह जगह अपना प्रदर्शन करता था। तो मतलब अगर घुमंतु प्रदर्शक भी हैं, घुमंतु कलाकार भी हैं, तो वो कलाकार तो हैं, आर्टिस्ट तो हैं, नाटक तो हो रहा है। सो ऑफ कोर्स there are different kind of references from Panini to Pali texts, and these Pali texts also gives you idea of how it has to be governed. Now let's talk about the first available theatrical evidences that we have. Now this theatrical evidences that we have says that the Natya Shastra is a book, and I'll tell you this book is a voluminous book which has 36 volumes, and it encompasses performing arts, theatre, dance, music, and other forms of arts, painting and sculpture. It was compiled by Bharat Muni, and basically according to historical facts, we can relate it between 200 BCE to 200 AD or 200 CE. It devotes mainly to the three aspects of performing arts, that is music, dance and theatre. So Bharat Muni, because he's a sage, and that traditionally in Sanskrit you call a sage a Muni. So this Bharat Muni says, who has compiled this text Natya Shastra, says that the origin of dance or Natya to Lord Brahma or Nataraj or Brahma, he is the one who is the originator of everything. तो नाट्य शास्त्र को अगर ऐतिहासिक तथ्यों पर अगर हम जाएं तो हम कह सकते हैं कि ये 2री शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक में आया, और इस दौरान नाट्य शास्त्र की जो परिकल्पना है वो स्वयं ब्रह्मा ने दी। तो इनके कारण ये अस्तित्व में आया। अब नाट्य शास्त्र की चूंकि हमारे पास चीजें में, जैसा मैंने आपको बताया, 36 खंडों में इस नाट्य शास्त्र की रचना की गई है, और इसमें ज्यादा इस बात पर नहीं ध्यान दिया गया है कि नाटक का मनोविज्ञान क्या है, दर्शक का मनोविज्ञान क्या है, कलाकार का मनोविज्ञान क्या है, समाज किस प्रकार के नाटक देखता है। इस तरह की बातें नहीं की गई हैं। इन नाट्य शास्त्र नामक जो हमारे पास पुस्तक है उसमें किस प्रकार का नाटक हो, कैसे नाटक हो, नाटक किस तरह से आए, कितने प्रकार का नाटक हो सकता है, उसमें क्या आवश्यक तत्व हैं। सो दीज आर बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड स्टाइल्स एंड मोशंस दैट हैव बीन dealt in the treatises called
Natya Shastra that was written by Bharata Muni. So I have a beautiful picture of this Bharata Muni that is imaginary. It's not actual. I'll tell you, because there was no photography system, and even there in the text we don't find an actual picture. So this is just an imaginary picture that has been created for you. And it has been said that Bharata Muni was an ancient Indian theatrologist and musicologist who wrote Natya Shastra. It is a theatrical treatise on ancient Indian communication in Sanskrit literature. Bharat Muni is considered as the father of Indian theatrical art forms and first communication scholar of the world. To give you a further detail, Bharat Muni को भारत में, विश्व में नहीं, भारत में नाट्य कला का आप जनक या पिता कह सकते हैं। और इन्होंने इस दौरान जो नाट्य शास्त्र है और उससे निकलकर जो भारत में नाट्य कलाओं का दौर शुरू हुआ, वो संस्कृत नाटकों का ये समय है। अब भरत जी के बारे में बात कर लें थोड़ी। भरत मुनि के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं, तो पहले इनका भी पता चल जाए। तो ये इनके हमारे पास ग्रंथ उपलब्ध हैं। ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है, बिकॉज दैट वाज द लैंग्वेज इन विच इनिशियल टेक्स्ट्स वर रिटन। सो दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। दूसरी बड़ी बात जो इसके बारे में है कि वो उन्होंने स्वयं नहीं बल्कि भगवान ब्रह्मा की प्रेरणा से पृथ्वी पर इस कला का जन्म हुआ। सो इट इज समथिंग दैट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय द गॉड्स एंड ओनली ऑन देयर एडवाइस एंड देयर ऑर्डर्स हैज दिस आर्ट बीन इनिशिएटेड, बीन कंसेप्चुअलाइज्ड एंड इनैक्टेड ऑन अर्थ। The third thing that has to be said about this kind of Natya Shastra is that it is said to have collected all the materials of earlier acharyas. Ancient teachers like Tamburu, Narad and Nandi gave the Natya Shastra complete coherence by making additions, alterations and adaptations according to the requirements of times and space. यानी इस ग्रंथ में इस बात की चर्चा भरत मुनि करते हैं कि मैं वो पहला व्यक्ति नहीं हूं जो आचार्य है या गुरु है। गुरुओं को उस समय शिक्षकों को आचार्य कहा जाता था। उसके पहले तंबुरु हैं, नारद है। नारद के बारे में आपने सुना होगा कि ब्रह्मा के वो मानस पुत्र हैं। नंदी के बारे में आपने सुना होगा। तो इन लोगों ने इस नाट्य शास्त्र के लिखने से पूर्व नाटकों की कला में बहुत सारे परिवर्तन लाए, जिसके कारण नाट्य कला जो है वो काफी सुधरी, काफी अच्छी और बेहतर होती चली गई। अब अगर आप नाट्य शास्त्र की बात करेंगे तो एक चीज जो आपको ये समझ में आनी चाहिए कि ये भी मिथकों का हिस्सा है। आप इसमें सच्चाई ढूंढने की कोशिश करेंगे। जैसे नारद, अब नारद के बारे में वो एक मिथिकल कैरेक्टर हैं या मिथकों में आपको ये पात्र दिखाई पड़ते हैं। तो इसमें इसलिए आप कहते हैं कि नाट्य शास्त्र में जैसे ब्रह्मा की बात की गई है, नारद की बात की गई है, सरस्वती की बात की गई है, तो ये मिथक हैं, ये धार्मिक जो पात्र हैं और ये कितने हद तक सच्चाई के साथ जुड़े हुए हैं ये बता पाना एकदम संभव नहीं। हो सकता है ये कल्पना के तत्व भी हों, लेकिन इनके बारे में लिखा गया है। अच्छा, इस नाट्य शास्त्र में नृत्य कला पर बहुत ध्यान दिया गया है। And the classical forms of dance forms that have emerged in India have in one form or the other been inspired by this नाट्य शास्त्र। तो एक तरह से इंस्पिरेशन है। अब नाट्य शास्त्र के बारे में आप देखेंगे कि मंदिर हैं, गोपुरम हैं, या फिर मंदिरों में स्तंभ हैं, या मंदिर की दीवारें हैं, या जब आप घुसते हैं मंदिरों के अंदर तो वो जो घुसते के समय जो प्रवेश द्वार होता है उस पर आपको ऐसे पैनल्स बने रहेंगे जिसमें आपको नाचते गाते या इस तरह के थिएटर करते हुए कलाकारों के चित्र मिल सकते हैं, जैसा मैंने आपको अपने स्लाइड में दिखाया है, जो ये बताते हैं कि भारत में प्राचीन काल से ही इस प्रकार की चीजें अस्तित्व में थीं और ऐसा नहीं है कि नया है।
So Natya Shastra introduces rasas. Rasas are actually aesthetics and expressions. I'll say, what do you actually call rasas in English? It is expressions, bhavas, emotional state portrayed by the dance actor or a non-dance actor or a performer. They are tastes, they are essence, they are sentiments, and initially we believe in Hindi or believe in Sanskrit that there were 8 kind of rasas or emotive kind of things, and theatre was the 9th one. So theatre is a later addition. रस क्या है? तो भावनाओं की अभिव्यक्ति है, भाव है, स्वाद है, महक है. वो एक तरह से आपके दिल के और मनुष्य के मन के भावों को बाहर करता है. आप हिंदी या संस्कृत के ग्रंथों में देखेंगे कि हम मानते हैं कि 8 प्रकार के रस हैं. जो नाट्य है वो 9वां या बाद का रस डाला गया. मूल 8 ही रस थे, ये 9वां डाला गया है, तो इसे मूल नहीं माना गया. कौन कौन से हैं भाई? तो श्रृंगार रस है. श्रृंगार मीन्स रोमांस. फिर है कॉमिक, हास्य रस. फिर कारुण्य रस है यानी करुणा, पैथेटिक, सेंटिमेंटल. रुद्र यानी फ्यूरियस या विभत्स रस, कई बार इसे विभत्स रस भी कहा गया है. फिर वीर रस है यानी हेरोइक डीड्स. फिर भयानक है जिससे आप डरें, जो आपको डराए, द टेरिबल थिंग्स. फिर सॉरी, मैंने विभत्स आपको फ्यूरियस में बता दिया. 7वां है विभत्स. फिर 8वां है अद्भुत. इट्स completely different. And then is the नाट्य शास्त्र और थिएटर्स. नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में कई चीज़ों का विवरण दिया गया है, जैसे एक्टिंग कैसे है, डांस कैसे है, म्यूजिक कैसे हो, ड्रामा कैसे हो, कैसे कॉस्ट्यूम किया जाए, आप कैसे कपड़े पहने, कैसे मेकअप करें, कैसे प्रॉप्स करें. सो दीज आर द एडिशंस दैट हैव बीन डन. और नृत्य के देवता के रूप में नटराज को स्थापित किया गया है. तो नटराज is the god of dance, and Shiva is associated with Nataraj. So Brahma and Shiva at one point of time come together. We'll talk about it in our next lecture that would be followed soon.